ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂ। ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਲਏ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਦਰ ਰੇਗਨ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਗਰੁੱਪਸ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ USA ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਚਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ਪੁਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਔਰ आचार्य जी उदों किमें महसूस करते थे? फिर से बोलिए सर। वो कैसे महसूस करते थे आचार्य जी उस वक्त, जिस वक्त आपने टेक ओवर कर लिया उस टाउन को, उसका नाम बदल दिया? एक्चुअली टाउन तो टेक ओवर नहीं कि हमने टाउन बनाया। There was nothing. It was just a barren land, 64,000 acre barren land, 120 square miles, as big as San Francisco. We created a city from the scratch. You have your own airport? Yes, we had our own airport. We had 13 airplanes. Air Rajneesh was the name of the plane that we had. We had buses for taking people to work, 50 buses. We had 50 Holstein cows. What I'm trying to say is that कहाँ काम करते थे वो लोग? There were hundreds of departments that are working there because we were all depending upon ourselves. अगर मान लीजिए सड़क बनानी है, आप मान लीजिए इंजीनियर हैं, आप जानते हैं सड़क कैसी हम आपसे सीख लेंगे सड़क कैसी बनती, फिर आपसे कहेंगे अब आप घर जाइए, अब हम बना लेंगे। और हमने सड़क बनाई, हमने सीखा सारा और हमने बनाया। वी वर टोटली सेल्फ डिपेंडेंट। सिर्फ अगर किसी से एडवाइस लेनी होती तो हम बुला लेते थे उसको। लेकिन आपके जो नज़दीक रहते थे वो क्रिश्चियन फंडामेंटल बहुत नाराज़ थे आपसे? बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जो क्या था सर कि जो रैंचर्स थे हमारे चारों ओर, उन्हें बड़ी जलन हुई कि हम 50-60 साल से एक घास का तिनका भी नहीं बना सके, और यहाँ उन्होंने पूरा शहर, पूरा ट्रक फार्म खड़ा कर दिया, वेजिटेबल्स हमारी, इतना सारा ऑर्चर्ड्स, फ्रूट्स वगैरह। तो दे वर बेंट ऑन समहाउ, आई हैव मेंशन इन माय बुक, देयर वर 17 agencies, government agencies that were working against us to create some trouble for us so that we can be out. आचार्य रजनीश का स्टेटस क्या था? वो नागरिक तो नहीं थे यूएसए के? वो सिर्फ गेस्ट थे हमारे। ही वॉज देयर एज अ विजिटर थे, एज अ स्पिरिचुअल टीचर कह लीजिए, स्पिरिचुअल मास्टर कह लीजिए। इससे ज़्यादा कोई उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सो विजिटर वीज़ा था उनके पास? हाँ, बिल्कुल था। एक्सटेंड करते रहते? हाँ जी। और वो मेडिकल उस पर आए थे क्योंकि उनको बैक का प्रॉब्लम था उनको। उसके लिए न्यू जर्सी को सबसे पहले आए ट्रीटमेंट के लिए। उसकी तब तक ये ज़मीन खरीद ली गई थी ओरेगन में। तो हमने कहा कि अब आप आ ही गए हो, जितना आप हमारे साथ रह सकते हो आप रहो, उसके बाद अगर आपको भारत जाना हो तो आप वापस लौट जाना। तो ही केम टू रजनीशपुरम एंड हिज हेल्थ वॉज इम्प्रूव्ड, क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, ये था वो, उस वहाँ की हवा पानी में उनको बहुत, उनकी हेल्थ अच्छी बन गई थी। तो वो बस रह रहे थे एज लॉन्ग एज ही वॉन्टेड टू live there or as a guest, but more than that there was nothing else happening in there. But ये हजारों लोग थे जो यूएसए के हर स्टेट से वहाँ पहुँच रहे थे, यूरोप से आ रहे थे। वो जो उनको डोनेट करते थे मनी, वो कहाँ जाते थे? वो ये स्पेंड होता था ना सारा, ट्रस्ट में रहता था। हाँ, जैसे वो कहते हैं कि वो एक बड़े हमारे एक ऐसा लिखते थे कार के पीछे, जीसस सेव्स
मोजेस गिव्स एंड रजनीश स्पेंड्स। तो हम स्पेंड करते थे, हमने कभी बचा करके नहीं रखा कि किसी दूसरे दिन के लिए, जितनी जरूरत थी उतना उसको स्पेंड हो जाता था। विनोद खन्ना भी उस वक्त आपके साथ हाँ था, जी, वो भी बिल्कुल डिसाइपल थे। था पक्का? हाँ, उनको ओशो ने बहुत अच्छा काम दिया था, माली का काम दिया था, उनके गार्डन के माली थे वो, ही वॉज हिज गार्डनर। हाँ, फूल लगाते थे वहाँ। हाँ, सारा उनका बहुत अच्छा, ओशो का बड़ा अच्छा बगीचा था, वहाँ पर वो माली का काम करते थे। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ओशो को, हाँ हमने देखा कि जी, गवर्नमेंट ने कई किस्म के दोष आयद कर दिए। कोई इनकम टैक्स का भी कोई इशू नहीं, था? इनकम टैक्स का नहीं, वो ये इमिग्रेशन के कोई ऐसे मनगढ़ंत 30 or 35 issues were raised against him, which he had nothing to do with that because he was not involved into any of those matters. और उसके आप देखेंगे मेरी पुस्तक में सारा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि हमारे लॉयर्स को वहाँ बात करने तक का नहीं मौका मिलता था, उनको बेल तक नहीं दी जा रही थी, और वहाँ उनको शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना से ओरेगन लाने में 6 घंटे की फ्लाइट होगी, उनको 8 दिन लगे लाने में, क्योंकि एक जेल से दूसरी जेल में, दूसरी तीसरी जेल में जाकर के उनको रेडिएशन में डाला गया, एड्स के पेशेंट्स के साथ रखा गया, उनको जहर दिया गया, थेलियम नाम का जहर दिया गया, हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की। उनको एक कहानी आती है उसमें, उनसे कहा गया कि ये इस पर साइन करो, तो साइन, उनका नाम था वॉशिंगटन, उनका नाम लगाया था वॉशिंगटन, तो उन्हें मेरा नाम वॉशिंगटन नहीं है, मेरा नाम रजनीश है, मैं तो मेरा साइन करूंगा, ये साइन मैं नहीं करूंगा। द आइडिया वाज एज इफ देयर वाज नो रजनीश, सम वॉशिंगटन नेम्ड पर्सन वाज in prison and was taken in the prison. ये सारी जो चालबाजियां हैं ये सरकार की उनके विरोध में हुई, ताकि ये सारा रजनीशपुरम, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू बन गया था। वो मेरे याद है उस वक्त जो एबीसी के शायद एंकर थे टेड कॉपल, आई नो, टेड कॉपल ने इंटरव्यू की जेल से उनकी जी, और उस इंटरव्यू में आचार्य जी ने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ मेरी साजिश हो रही है, मुझे मारने की साजिश जी, हो रही है। जी, उस वक्त उनकी जान को खतरा था। जी। इतना ही नहीं, जब उनको पोर्टलैंड लाया गया और उनको रखा गया क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, तो उनके नीचे भी बाद में देखा गया कि उनके चेयर के नीचे बम रखा हुआ था, तो बम फूटा नहीं किसी गलती से, तो वहां पर ही वो उसको उड़ा देना चाह रहे थे वो तो। लेकिन ये भी उस दफा मेरे याद आया कि टेड कॉपल ने यह भी कहा कि वो यहाँ से निकल रहे थे और जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे उसके नीचे बहुत से कैश और गोल्ड था उसमें। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सो आखिरी समय कैसा था उनका? आखिरी समय तो बस वो पूना आ गए थे, वैसे वो 21 देशों में फिर निकल गए, क्योंकि इंडिया में उनको जगह नहीं मिल रही थी। नेपाल में रुके, नेपाल राजा ने कहा कि आप ही मत रहिए, सो ही वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर ऑफ 21 कंट्रीज, इधर दे आस्क हिम टू लीव और दे डिडंट अलाउ हिम टू एंटर, ऐसा करके। क्या वो मुल्क थे जो यूएसए के? ये सभी जो का सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं, स्पेन है या सारे उसके नाम दिए हुए मैंने, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री थे, उन्होंने उनका जो बेसिक राइट है उसको तो पूरा होने ही नहीं दिया। और फिर वो लौट करके जब भारत आ गए 1987 में, और 88 में फिर वो पूना वापस आ गए। ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? हिंदुस्तान में आकर के फिर वो वापस पूना में सेटल हो गए, फिर पूना में सन्यासी आने शुरू हो गए, हज़ारों लोग फिर इकट्ठा हो गए, फिर ध्यान की प्रक्रियाएं शुरू हुई, सब कुछ ओशो मल्टीवर्सिटी फिर डेवलप हो गई, फिर से एक बार वो सारा चलता रहा, और लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। आपने कुछ टेस्ट करवाए थे लंदन की लैब में? उनकी लंदन लेबोरेटरी में उनकी जो ब्लड है, हेयर है, इसके सारे सैंपल्स भेजे गए थे, वहाँ ये डिटरमिन किया गया था कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनको थेलियम नाम का स्लो पॉइजनिंग दिया गया है, जिसकी वजह से बॉडी डिटेरियोरेट हो रही है। He was 58, 59. He was born in 1931 and he left his body in 1990. About 59 years old. क्या ये बात सत्य है कि ह्यू मिलन नाम के उनके बॉडीगार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, भगवान दैट फेल्ड? Yeah. Are you aware of that book? I am aware of that, yes. उसमें जो लिखा है, जी, आप उसके बारे में जानते हैं? मैंने उस बुक को पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि एनीबडी इज फ्री टू राइट वॉट एवर वन वांट्स, हाउ यू परसीव, हाउ यू लुक एट इट,
how you interpret it is all everybody individual's business. So I can say, okay, so if he wants to write this way, that's perfectly fine. It's his freedom. ही वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल, उनकी क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई है. तो होगी ही. किसी भी सदगुरु को बिना कंट्रोवर्सी के आपने सुना है कभी? मुझे आप नाम दीजिए, मैं बताऊं कि कितनी कंट्रोवर्सी थी. कबीर साहब की कितनी कंट्रोवर्सी थी, बुद्ध की कितनी कंट्रोवर्सी थी, महावीर की कितनी कंट्रोवर्सी, फरीद की कितनी थी. ये जो सारे जो संत पुरुष हो गए, दे वर देयर टू स्पीक द ट्रूथ. एक बात बताऊं आपको बहुत मजेदार. क्या होता है सर, एक किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है. वो कहता है कि तुझे जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाज, और मैं रूह को मोहताजे कफन देखता हूँ. वाह. क्या? तुझे जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाज, मैं रूह को मोहताजे कफन देखता हूँ. क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ. वाह वाह वाह, क्या बहुत बहुत अच्छे. मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ. तो जब अंधों के सामने आईना रखेंगे तो पहले तो भड़केगा कि ये क्या दिखा रहे हो मुझे, या तो आईना तोड़ेगा या आपको मार डालेगा. वो आईना देखना नहीं चाहता. और सदगुरु हमेशा चाहता है कि आईने में देखो अपने आप को, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, वो जरूरी है. सुमित, आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जीना परमात्मा का एक गिफ्ट है. जीवन हम कैसे जीते हैं ये हम पर डिपेंड करता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और ओशो ने जीने के लिए दो बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे कहते हैं दो पंख हैं जीने के, कॉन्शियसनेस के. एक तो है होश, अवेयरनेस, और दूसरा है प्रेम. अगर होश से जीते हो तो आप सच में जिए. अगर आप प्रेम से जीते हो तो आप जिए. अगर आप दोनों में से एक से भी नहीं जीते तो आप जिए ही नहीं, आप सिर्फ एग्जिस्ट किए. जैसे ट्री एग्जिस्ट करता है, पत्थर एग्जिस्ट, आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हो. यू हैव नॉट लिव्ड. हाउ टू लिव, दैट इज हिज मैसेज. एंड हाउ टू लिव विथ अवेयरनेस. हम बेहोशी में जीते हैं, हमारा सारा काम बेहोशी में चलता है. हम किसी काम को होश में नहीं करते, क्योंकि हमारी आदतें पड़ी हैं, कंडीशनिंग पड़ी हैं, संस्कार पड़े हैं, वो चलाते हैं हमको. हमें अपने होश से हम नहीं चलाते. हम कैसे खाना खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों इस तरह से फील करते हैं. कभी देखा आपने, कभी आप भीतर प्रवेश किया आपने? मेडिटेशन जो है ओशो के लिए वो सबसे बड़ी, दैट्स द ओनली एंटीडोट टू द पॉइजन दैट हैज बीन गिवन टू अस थ्रू आउट द सेंचुरीज इन आवर माइंड. तो ध्यान की प्रक्रिया, प्रेम की प्रक्रिया, इससे ज़्यादा उनका कोई मैसेज नहीं. और जीवन को सत्कार करो, उसको स्वीकार करो, और उसके लिए जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो. डॉक्टर बसंत जोशी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. शुक्रिया. आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम. आपके श्रोताओं को फिर से एक बार मेरा धन्यवाद और मेरा प्रणाम करता हूँ. थैंक यू सो मच.